So we talked about bulk modulus, and in bulk modulus, thermal elasticity or thermal modulus of elasticity. What is the formula? Bulk modulus equals to pressure directly in isothermal case. What is the adiabatic elastic constant? It is gamma into P, right? Gamma into P. And what does gamma represent? So gamma represents atomicity of the gas. Okay, gamma represents atomicity of the gas. Then is the Poisson's ratio. It is the ratio of change in length upon change in radius upon change in length. Its theoretical limit is from -1 to 0.5 and its practical limit is from 0 to 0.5, right? Means the last one, practical experience limit, means what we experience in our real life in usually. Then what is the condition for sigma equals to 0.5? अगर सिग्मा का वैल्यू 0.5 है तो उस समय वॉल्यूम के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे हम? इट्स कांस्टेंट, राइट? वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो वी प्रूव्ड इट. हाउ डू वी डू दैट? First you write the volume, then differentiate it, make the volume 0 and keep on solving to get that ratio, and that ratio comes plus 1 by 2, that is 0.5. Okay, okay, what will you conclude about sigma equals to 0? If sigma equals to 0, what do you mean by that? What will you conclude from it? So first you will write the formula. Sigma equals to minus of delta R upon delta L upon L. And it is being said that it is equals to 0. So does it means that delta R is equals to 0? बताइए. Yes, sir. निकल क्या आ रहा है? So even though length is changing, इससे ये कंक्लूड नहीं हो रहा है कि लेंथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. Even though length is changing, there is no change in the radius. So how is that elongation taking place? So usually what we think is कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ये पतला होता चला जा रहा है. वो उस समय हम सोचते हैं जब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है. अभी क्या हो रहा है कि हम इसके लेंथ को इंक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन इसका रेडियस कम नहीं हो रहा है. यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज L and this is L dash. So I keep on increasing the length, but what is happening to the radius? It's not changing. So in such case we will say sigma is equals to 0. Okay. What do you think about the density or the volume? Volume changing or not changing? Changing. The volume is increasing, it's changing, and density is decreasing. Volume is increasing, and in this case density is decreasing. Okay, in which case do you think that sigma can be negative? -1 to 0.5 I wrote there. So some negative value of sigma. What could be the possibility in terms of elongation and radius change? I am asking. I'm just asking to comment on delta L and delta R. What do you think about them when sigma is negative? Mathematically you can think of, go by the formula. If you go by the formula, see this part and this part. I said if sigma is negative, so the minus sign is already there. If sigma is negative, it means
this term is positive and this term is positive, right? Delta n and delta r both are positive or both are negative. Are you getting my point? For sigma to be negative, already minus sign is there. So this factor, change in radius and change in length, both are either positive or negative at the same time. It cannot Yes. be opposite to each other, right? It means that case in which length is increasing at the same time radius is also increasing, in that case sigma will be negative. Okay, so of course that seems to be a little impractical, but we cannot say this situation, this expression includes all the possibilities which could happen. Okay, so I'm just giving you an idea what to understand from this sigma value, something minus 0 and something positive. What do you mean by that? We have to understand this. Then we talked about stress strain curve. So I will explain it again. The arrangement was for a wire, metal wire, and here is some weight to be placed here to give tension or stress to the wire so that it can elongate. Now what happens when I apply the force? These are initial atomic distance or molecular distance in the wire. When I apply some force, let's say 50 kilogram weight, do you think that the molecular distance will increase? Yes, no? Because of elongation. When you apply Yes, the sir. weight, the molecular distance will increase. Now, but still it will be in equilibrium after elongation, because there is upward force in this, and we call that force as restoring force or intermolecular force, right? And downward force is mg. So they are balanced in this situation. What happens if I remove this 50 kilogram? Tell me what will happen if I remove this 50 kilogram? Because of the restoring force, the molecule will go back to their original position. Okay. Now if I increase my weight by 150 kilogram, so you think that the molecular distance will be even more? Increase. Yes. What about the restoring force? That should also increase, right? That restoring force also increases when the distance increases. But after a certain distance, this restoring force all of a sudden decreases. So I'm talking about 150 kilogram, and I will say that it is still, there is restoring force, and it will go back if I remove this weight. If I remove the force, external force, the body will sink back to the original position. But this will be a little non-linear case. Okay. Now if I put 200 kilogram, we will find sufficient large distance between the molecules. Okay. Now this situation could be like that molecules are not able to restore again. Means molecules are separated so much that it's going out of the range in which intermolecular force was acting. Are you getting my point? Molecules Yes, sir. are separated enough so that intermolecular force is no more surviving in this case to restore it. Okay. Now this is called plasticity of the body. When the body is unable to restore its original shape, I will say the body is now plastic. Okay. Now after this, if I remove this 200 kilogram, the body will remain as it is. It will not restore at all. Okay. But when I put some 250 kilogram, its molecular distance will increase even more, and it is already in the plastic region. It's not going to restore even after removing this. That's okay. But what happens in this situation? When you place 250 and molecular distance has been increased a bit more, after that I remove this 250,
And if I put 100 kg even, the further elongation will take place. May be possible if I put some for 50 kilogram, further elongation will going on. Now what happens is I am decreasing the stress. Weight means force upon area, that is I am decreasing now. Even though the length wire keep on increasing its length, and at one point it is going to break down. So this is the whole scenario that has been expressed in the figure. So up to 50 kilogram I can say, just as an example I am telling you, it's not necessarily. Up to 50 kilogram you can take linear proportionality A point, in which you say Hooke's law is applicable. Only in this case Hooke's law applicable, because Hooke's law is stress is proportional to strain, right? Stress is proportional to strain. This is your Hooke's law. So this is applicable only between O to A, right? Between A to B, body is still elastic, because we call B as elastic limit और yield point, जिसके बाद ये हार जाएगा, ठीक है? तो इलास्टिक लिमिट का मतलब ये वो लास्ट पॉइंट है बी, जब तक में अगर हम छोड़ेंगे तो बॉडी अपने शेप को वापस रिस्टोर कर लेगा. बी के पहले किसी भी पॉइंट पे छोड़ेंगे बॉडी अपने शेप को रिस्टोर कर लेगा, लेकिन बी के बाद अगर हम छोड़ेंगे तो बॉडी अपने शेप को रिस्टोर नहीं करेगा. सो आफ्टर बी प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्टेड. ओके, in that what we see in the figure is C is the highest point, you can see, and after that, after C, if you reduce the stress, still the length is increasing. That is what I told you in the last section. So CD is that part in which liquid behave as a fluid. We say that the wire is now flowing in the section CD. Usually this behavior you will observe in the last stage of just before breaking, right? When the wire is about to break, before that you will observe this condition for the wire. Okay, now the length from B to D represents the ductility of the material or brittleness of the material. Larger the length BD, it is more ductile, and smaller the length BD, it is less ductile and more brittle. Okay, so we can put all these things in the point wise. What is our takeaway from this graph? So point number 1 is slope. Everyone check in the figure. I am talking about this angle theta. Slope means tan theta. Is it stress upon strain from the figure? Tell me, confirm me. On the y-axis, there is a strain, and on the x-axis there is stress on the y-axis, strain on the x-axis. So stress upon strain is equals to tan theta. Now this tan theta is also written as Young's modulus y, because what is the definition of Young's modulus? Stress upon strain. So theta or slope represents stress, Young's modulus of the material. Okay, now larger the value of y, larger is the elasticity. Okay, for example, if this is strain, stress, and you are given 3 different materials and their stress and strain, so which one is more elastic? किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है? किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है? जिसका थीटा ज़्यादा होगा. C. So Young's modulus is more for C. C is more elastic comparing to A. Okay,
तो ये जो यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन हमें लिखना है वो केवल OA रेंज में ही लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। जहाँ पे लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है केवल उसी पार्ट में वर्क करना है, नियर द ओरिजिन, नॉट फार बियॉन्ड दैट from the region. Okay, because this definition is only Hooke's law. Young's modulus equals to stress upon strain is the Hooke's law, and Hooke's law is applicable in the first region, OA part only. Okay, now coming to the second part, what more we conclude from here? Wire behave as fluid in CD part, in CD, that is before breakdown. ठीक है, टूटने के पहले ऑब्वियसली ये फ्लूइड नेचर शो करेगा। थर्ड पॉइंट इज योर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, what is this breaking strength? Maximum stress, sorry, minimum stress to break wire। इस वायर को ब्रेक करने के लिए कम से कम कितना स्ट्रेस देना होगा, और ये पता कैसे लगता है? तो ये पता लगता है हाईएस्ट पॉइंट से। यू कैन सी दिस पॉइंट सी, मेरे फिगर में पॉइंट सी, राइट? एंड इफ यू वांट टू सी इन द लोअर फिगर, वेयर इज दैट स्ट्रेस पॉइंट? सो इट इज द हाईएस्ट पॉइंट हियर। आई एम मार्किंग इट विद द pink dash line. This is breaking strength. Strength or stress both are same thing. What is the breaking strength? This is the minimum force or stress that is required to break the wire. Okay. Fourth conclusion from this figure is large BD. See the figure? Usually BD, but you can take it from the origin also. There is no issue. So usually from the BD, B is the point where the elastic limit, where is the elastic limit means elasticity end up. After that plasticity comes. So in the plastic region, how much the body can elongate, we talks about the ductility. So larger the BD, this part, larger is the ductility. Large BD implies that ductile material. Okay. Small BD, what will you conclude? Brittle, brittleness है, ठीक है, material is brittle. So these are the conclusions from this graph. Any question you have? And see, this graph is a little rough graph. It's not very perfect in this sense. So you may see some variation, but in more or less, you will see initial part as an straight and other part as having some peak, and then the graph will go down up to point B before fracture. So in the both graph, you will see the same pattern. Okay. So why does the wire behave like fluid between C to D? Because at that time the force to hold back the molecules is so weak that even a low force will keep them pulling apart.
Before reaching that stage, what happened? Molecules were sufficiently far away from each other Yes, sir. before behaving that fluid nature. Fluid nature means what? It means अपने आप टूट जाना, जिसको कहते हैं। आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट ही देने का जरूरत नहीं है, अपने आप वो फ्लो कर गया, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एंड एक दूसरे से सेपरेट होना मतलब कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो गया, टूट गया। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले तो हम मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे थे। शुरू में डिस्टेंस बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद अचानक से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी काम करना बंद कर देगा। अब हम उस रीजन में बात कर रहे हैं जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं। समहाउ देयर इज अ वेरी स्मॉल फोर्स विच इज जस्ट कीपिंग द मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट, टूटने नहीं दे रहा था। प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है? रिस्टोरिंग नहीं होता है, राइट? लेकिन फिर भी एक दूसरे से मॉलिक्यूल जुड़ा तो रहता है ना। तो हम उस फोर्स पे बात कर रहे हैं अभी, कि वो वाला फोर्स अभी बचा हुआ है। लेकिन क्या होगा कि जब आप और डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ये भी जो फोर्स उसे इंटैक्ट करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, वो भी फोर्स वीक होता चला जाएगा। शुरू में तो ज़्यादा फोर्स लगा करके मुझे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, बट बाद में क्या होगा, फोर्स का अमाउंट बहुत कम कर दो, तब भी वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। And this situation I call is that the wire is behaving as a fluid. And usually this will happen only just before breaking. Simple. ठीक है? Yes, sir. Right. As I said, that graph was made for the wire, some ductile material. What about rubber? So rubber does not say shows any plastic behavior at any stage of their elongation. Am I right, guys? Think of a rubber band. You keep on stretching it, right? Just a second. Huh? Just a minute. Huh? Yes. So let's have some questions.
Solve this question. Simple question. Given is the stress strain curve, what is the Young's modulus? What is Young's modulus and approximate yield strength of the material? Yield strength means breaking strength. Okay? Yield strength means breaking strength. So how to find Young's modulus? Should I work on OP? Right? So Yes. Young's modulus equals to stress upon a strain. How much is the stress? 150 into 10 to the power 6 Newton per meter square. How much is the strain? Tell me. 0.002. 0.002. So you will solve it. I am leaving it. सॉल्व करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा? फ्रॉम फिगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? लक्ष्मी बताओ. Yes, sir. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना आ रहा है फिगर से? इट इज द हाईएस्ट पॉइंट, राइट? 300. Yeah. 300 upon And 0. therefore, the answer is 300 into 10 to the power 6 Newton per meter square. This is the breaking strength, yield strength. So simple question you will come across from this. Answer these questions. Akshit, question number 1. Akshit. Arya, there are two curves given A and B. Which one is ductile and which one is brittle? Chinmay, कैसे होगा तुम लोग का? Sir, A is ductile. Yes, repeat again. A is ductile. A is more ductile. Good enough. Very good. Nuren. So you have to see which one has more strength, more length. कौन ज़्यादा लंबा खींचा है? तो A ज़्यादा लंबा खींचा है और B जल्दी टूट रहा है. So B is brittle and A is ductile. Answer is B. Question number 2. PQR का सर ऑप्शन है. ऑप्शन है. Elasticity of wire is कौन Wire सबसे is maximum. मानव, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर बताया? मानव, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बताओ. Elasticity of wire P is maximum. आर का बता रहे हो? Elasticity of P is maximum. Everyone is agreeing with this? Yes, sir. So Lakshmi, you are saying P has more elasticity. Am I right? Young's modulus ज़्यादा है P का. Yes, sir. एक बार जरा एक्सिस को चेक करो फटाफट. ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? सर आर का ज़्यादा.
अभी आर का ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन में तो आर दिया नहीं है कहीं भी, है ना। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पी और क्यू सबसे ज़्यादा आर का इलास्टिसिटी है, लेकिन क्वेश्चन में इलास्टिसिटी नहीं दिया है। समझ रहे हो ना, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन अलग अलग प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी मीन्स वाई, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा इलास्टिक है वो ब्रिटल या डक्टाइल ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते आप, है ना। बट दे दैट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस ओनली। सो आर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी आर का है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ए और बी तो आंसर होगा नहीं। तो अब रह गया सी और डी में आंसर करना। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आर इज मैक्सिमम। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकलता है? मैक्सिमम हाइट से ना, नूरेन। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं फिगर से? स्ट्रेस पे मैक्सिमम हाइट देख करके, राइट। जैसे ऊपर Yes, वाले sir. फिगर में देखूं मैं तो ये है मैक्सिमम हाइट, ऐसा हम लोग कंक्लूड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे दिया है, तो एक्स एक्सिस पे सबसे ज़्यादा लेंथ क्या आएगा ये देखना है। तो आर का आ रहा है या क्यू का आ रहा है, ये बताओ मुझे। एक्स एक्सिस पे सबसे ज़्यादा लेंथ, Q. देखो चीटिंग नहीं किया है मैंने स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। स्ट्रेट ही है ना? Yes, sir. Yes, यस। Yes, sir. तो अब बताओ मुझे sir. किसके लिए मैक्सिमम लेंथ आ रहा है स्ट्रेस का, आर के लिए या क्यू के लिए? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, एक्स एक्सिस लेंथ किसके लिए ज्यादा आ रहा है? So दोनों का सेम है। दोनों का सेम है, क्यू का नहीं। क्यू का नहीं, एक्स एक्सिस पे केवल देखना है, एक्स एक्सिस पे ये, राइट। सो बोथ, फॉर बोथ इट इज सेम, फॉर पी एंड क्यू। सो बोथ हैज इक्वल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसलिए सी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आर और क्यू में कंपेयर करेंगे तो दोनों का बराबर आ रहा है। सो कांट से कि आर का मैक्सिमम है। सो द आंसर इज डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लोड वर्सेस इलोंगेशन। तो लोड का मतलब स्ट्रेस से है, इलोंगेशन का मतलब स्ट्रेन से है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस स्ट्रेन है और लोड का मतलब स्ट्रेस से है। OD. Option A. D. एक ही Option A. मटेरियल है, लेकिन थिकनेस किसका ज्यादा होगा ये बताना। द थिकेस्ट वायर रिप्रेजेंटेड बाय, एक ही मटेरियल है, ठीक है। तो थिक कौन है ये बताना है। थिक का मतलब डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया से है, ठीक है। OD. देखते हैं y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ऐसा देखते हैं हम लोग। हमें एरिया के ऊपर फोकस करना है। y इज सेम फॉर ऑल, लेंथ भी सेम ही लेंगे। d इज मोर इलास्टिक, यंग्स मॉडुलस d का सबसे ज़्यादा है। ओके, कैसे ज़्यादा हो सकता है? सेम मटेरियल का है तो फिर थिकनेस पे आके बात हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे समझोगे, फॉर सेम डेल्टा एल, ये रहा डेल्टा एल, ये है एफ ए, एफ बी, एफ सी एंड एफ डी। तो डी में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा एल, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एफ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो विच वन इज द आंसर? यू आर आंसरिंग डी एंड यू आर राइट। समझ में आ रहा है ना? सेम Yes. इलोंगेशन, सेम इलोंगेशन के लिए किस में ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए? डी में ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए।
1 second. Stress equals to Young's modulus into strain. आई सेड कि सबका सेम स्ट्रेन ले रहे हैं, ये डेल्टा एल जो है सबका सेम ले रहे हैं, तो फिर ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, तो स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया. ना स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. दिस हैज टू बी इक्वल्स टू कांस्टेंट. या ट्रू, ठीक है. फिर जिसका फोर्स ज़्यादा है उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा. सो OD इज द आंसर टू दिस. So you can see this type of question will come from the graph. एक तो क्वेश्चन ही गलत दे रखा है. One graph that you need to remember is this one. मैंने रबड़ का नहीं बनाया था, तो यहाँ पे ना तीनों का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं. ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल एंड एलास्टोमर और रबड़. दिस इज योर रबड़, एलास्टोमर इज रबड़. जस्ट सी द कर्व. In first two figures, they are of the wire. They should be of the wire like material. But in elastomer, what happens? There is no plastic region at all. So there is only elastic region. And the yield point means आप रबड़ को जब स्ट्रेच करते हो ना, तो याद करना कि टूटने के पहले भी अगर उसे छोड़ दोगे तो रबड़ अपने नॉर्मल लेंथ पे आ जाता है. क्या ये बात क्लियर है? रबड़ को स्ट्रेच किया तोड़ने के लिए, बहुत लंबा खींचा और वो खींच भी जाता है, लेकिन टूटने के पहले अगर मैंने उसे छोड़ा तो क्या वो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है? इवन आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, टूटने के बाद भी जो दो पीस बनता है वो अपने ओरिजिनल शेप में ही आ जाता है ना रबड़. Yes, sir. ऐसा होता है. सो एक्चुअली इलास्टिक पॉइंट या yield point or fracture points is same for the elastomer. So you will not find a region like this in elastomer. Simply the initial curve from O to E point, and the E point itself will become a fracture point. So this is the difference between normal material and elastomers or rubber. Rest I have already talked about. You have to see this length and this length to understand ductility and brittleness. So plastic region किसका ज़्यादा दिख रहा है? तो सेकेंड ग्राफ का, I name it 1, 2 and 3. So सेकेंड ग्राफ का प्लास्टिक रीजन ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ज़्यादा लंबा खींच सकता है वो. ठीक है. सो सेकेंड कर्व इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल, फर्स्ट कर्व इज फॉर ब्रिटल मटेरियल कंपैरेटिवली. ओके. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है? 1 और 2 में बताओ. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम हाइट से देखोगे. ठीक है. तो कर्व 1 का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, राइट? ये हाइट देखना था तुम्हें. सो कर्व 1 में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, कर्व 2 में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सबसे कम है. ओके गाइस. So next part of discussion is elastic potential energy. Elastic पोटेंशियल एनर्जी. ये चीज़ मैंने सिखाया था तुम लोग को कि कैसे हम ये समझें कि एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है. तो मैंने ये बोला था कि अगर आप उस बॉडी को छोड़ो और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे तो हम कहेंगे कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जिधर वो जा रहा है उधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है.
तो क्या जो वायर अंडर वेट था, जिसके ऊपर हमने वेट लगा रखा था, क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? तो यस, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि जब हम उस वेट को रिलीज करते हैं तो ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में जाता है, मतलब मूवमेंट शो कर रहा है, और वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जिधर उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। तो नेचुरल लेंथ पे आते समय इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। सो इट इज सेम एज योर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. See, spring is there. When you hang a block from it, it gets stretched, and there is a potential energy called half kx square. When you remove this block, what will happen to the spring? Will it go back to the natural position? Yes, sir. And in that case, this potential energy becomes zero. So that is the same is exactly happening in this case also. In case of rod, of course, it is not as flexible as a spring, but to certain extent it is same thing happening in the rod also. Molecules get elongated, separated under the weight. When you remove the weight, the molecules will go back to their original position. So this body has potential energy. Now this should be clear to you. This body has potential energy. Okay, so what is the formula of potential energy? Elastic potential energy equals to half into stress into strain into वॉल्यूम. फॉर्मूला सबसे पहले मैंने सामने रख दिया, ठीक है. बाकी कैसे आता है, विल वर्क अपॉन दैट. This is the formula. Elastic potential energy equals to this. Say this is the force F applied over here. Length of the wire is this. Cross sectional of the wire is A. So should I write it as F equals to 1 by 2 force upon area, change in length upon length, into area into length. Area into length is volume. When to do a little simplification, so A and L will cancel out from numerator and denominator. We get half F into delta L equals to change in potential energy. Okay. So this is basically your potential energy stored in the body. Further, we can do a equivalent with the स्प्रिंग ऑल्सो. यहाँ से हम एक स्प्रिंग के लिए इक्वलेंसी निकाल सकते हैं, मतलब स्प्रिंग और इस रॉड को एक जैसा सोच सकते हैं. कैसे, वो देखो. फोर्स अपॉन एरिया मीन्स स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. डू यू एग्री विद दिस फॉर्मूला? F upon A stress equals to Young's modulus into change in length upon length strain. Okay, so this force equals to what? YAL into delta L. Okay, when I put this force in this expression, I will get U equals to half YAL into delta L whole square. Okay, now this is elongation in the wire under weight. तो अगर ये स्प्रिंग होता तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. व्हाट इज एक्स? एक्स इज ऑल्सो elongation. So if you compare the two, I should write it spring potential energy. So if I compare the two, you will find that this is equivalent term, right? This implies that spring constant K is equivalent to this YA upon L, Young's modulus, cross sectional area and length. इनका जो प्रोडक्ट, इनका जो ये अरेंजमेंट आ रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो रहा है. क्यों कर रहे हैं हम ये काम? इक्वलेंसी क्यों बना रहे हैं?
क्योंकि अब आगे से आप देखोगे कि 2-3 रॉड एक के बाद एक लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है, तो उस केस में हम स्प्रिंग के जैसा इसको सोच करके बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर रॉड के जैसा ना देखें तो बेटर होगा, ठीक है। सो दैट वी विल सी फॉर द टाइम बीइंग। हैव यू अंडरस्टूड एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट? Derivation is still remain that we are going to do now. What is the formula of elastic potential energy? Akshat? सामने लिखा है, बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। लिखा है ना स्क्रीन पे? Yes. So you should just read out. सर ने पूछा है, एक बार बता देने में क्या जाता है? It's a part of learning, right? Even if you know. So if we discuss, other will get the help of that also. So elastic potential energy equals to half into stress into strain into volume. Volume क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ से आएगा। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, एंड स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फर्दर कई बार हम इसी फॉर्मूले को पर यूनिट वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस करते हैं, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पीछे मेंशन कर दिया है ना, ईपी। दिस इज योर ईपीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में हम ईपीई बोलेंगे। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट इज U अपॉन V वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, विच कैन फर्दर बी रिटन एज हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्ट्रेस के जगह पे वाई इंटू स्ट्रेन रख दिया। फर्दर हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वाई। सो दे ऑल आर सेम फार्मूला, बस एक से दूसरे फॉर्मेट में रख रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि जिस फॉर्मेट में स्ट्रेन में अगर तुम्हें चाहिए तो आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, derivation of elastic potential energy. So we take this as a wire, okay. So what is the force at this stage at any point? Okay, ऐसे समझते हैं। Just a second, huh? So force F is applied at the bottom,
and see what happens. I have to take the force variable in this case. Our concept point is potential energy will be written as work done. Work done by force F in elongation. elongate करने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ा है. फोर्स लगाने से मान लो ये नीचे की ओर elongate होकर के यहाँ आ गया. So this is the elongation. Let me call it as delta x, right? But in that case, what we are going to do? I'm going to do the elongation in different sections. Like यहाँ से x ऊपर चले जाओ, ठीक है? What is the force acting at this point? So I have to find that, and that force will be responsible for elongation of this small element. So what I'm doing is I'm taking out this small element. So what should I take the thickness of this? I should take the thickness as dx. Okay. So this thickness is dx. Length is L. So बताओगे कि dx का इंटीग्रेशन अगर कर दे तो कितना आएगा? dx plus dx plus dx plus dx. What will you get after integrating dx? Yes, मानव. dx plus dx हर एक एलिमेंट को ऐड करते चले जाओगे, क्या मिलेगा तुम्हें? दिख तो रहा है, फिगर में दिख रहा है. So why you take so much of time? Please tell immediately. डेल्टा एल, सॉरी एल मिल जाएगा, टोटल लेंथ मिलेगा, ठीक है. सो dx इज द पार्ट ऑफ द वायर. नाउ इट इज अंडर द फोर्स एफ डैश. तो नीचे और ऊपर में फोर्स में फर्क तो आएगा, लेकिन ये थिकनेस बहुत छोटा होगा तो ऊपर और नीचे का फोर्स में फर्क बहुत कम रहेगा, इसलिए हम लगभग दोनों को बराबर लेंगे. तो मैंने ऊपर भी एफ डैश शो किया है, नीचे भी एफ डैश शो किया है. एफ डैश इन टर्म्स ऑफ एफ कितना है, तो ये ऐसा लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. एक्चुअली दिस फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, ठीक है. तो एक यूनिट में कितना फोर्स है, तो एक्स यूनिट के बाद कितना फोर्स आएगा, ऐसा हम लिखेंगे. इज इट अंडरस्टूड? एफ डैश इक्वल्स टू एफ अपॉन एल इंटू एक्स. Yes, sir. Now this force is responsible for elongation in this element by a small distance like this. This force is responsible for a very small elongation in this element. So let's call that elongation as delta x. I wrote it with yellow color. So length is dx and elongation is delta x. Is that clear? Let me write it also. This is length of the wire under consideration and this is elongation. You have to make the distinction between them. नहीं तो पता लगा dx को ही elongation बोल दे रहे हैं. dx एलिमेंट का लेंथ है, उसके अंदर फोर्स लगने से एक खिंचाव आया है तो लेंथ बढ़ा है, and that is change in length delta x. So the two are different. So मैं पूछूं कि स्ट्रेस बताओ, स्ट्रेन कितना है इस फिगर में, बताइए. स्ट्रेन इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. देख लो, ऊपर लिखा है मैंने इलोंगेशन, नीचे लिखा है लेंथ. यही होता है ना स्ट्रेन. Yes. चलो अब आते हैं स्ट्रेस के ऊपर या फिर वर्क डन के ऊपर. फोर्स से निकालेंगे.
फोर्स एफ डैश अपॉन एरिया इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर यहां से एफ डैश इक्वल्स टू लिखेंगे हम वाई ए डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसा। ओके, नाउ व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, जितना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो। एफ के टर्म में लाना था, तो फोर्स अपॉन लेंथ इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स। Right enough. So from here delta x upon dx can be written as f upon Lay into x. Something getting wrong. F upon Lay into x into delta x. सी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, हमें निकालना है एफ 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल, वे डेल्टा एल और डेल्टा एक्स इज द इलोंगेशन, ये निकालना है हमें फॉर्मूले से। तो एफ रहना चाहिए और एक डेल्टा एल रहना चाहिए। तो ये आ रहा है क्या यहाँ से? नहीं आ रहा ये। इवन आई कैन नॉट इंटीग्रेट दिस स्टेटमेंट, या तो मुझे dx में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। इसे dx में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ए वाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये डेल्टा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सर वो एफ अपन एल बाय आपने एफ डैश की जगह लिखा था।
F अपॉन ऑन एल ए इंटू वाई, वो एफ डैश की जगह लिखा था। या व्हाट आई रोट इज कि ये जो फोर्स अपॉन एरिया है उसके वजह से इसमें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आएगा। उस फोर्स अपॉन एरिया के वजह से उसमें स्ट्रेन आएगा। तो एफ डैश अपॉन ए इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स, ये लिखा है। उसके अलावा एफ डैश जो है वो एफ अपॉन एल इंटू एक्स के बराबर है। तो मैंने एफ डैश के जगह पे एफ अपॉन एल इंटू एक्स लिखा था, इंटू ए वाई एज इट इज़ है, इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स भी एज इट इज़ है। नाउ आई एम डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एफ अपॉन एल ए वाई ऊपर में एक्स है और डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। नाउ एफ डैश अगेन फोर्स और उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ डैश इंटू डी एक्स, एफ डैश इज अगेन एफ अपॉन एल इंटू एक्स। वापस मैंने एफ डैश की जगह पे ये लिखा है, डेल्टा एक्स के जगह पे एफ अपॉन ए वाई इंटू एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। समथिंग गेटिंग रॉन्ग। फाइंडिंग इलोंगेशन, हमें क्या पता करना है? डेल्टा एक्स या डेल्टा एल पता करना है, इलोंगेशन पता करना है। ठीक है, देयर वुड बी फोर्स गिवन, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन एंड अदर थिंग्स वुड बी गिवन। यू हैव टू फाइंड द इलोंगेशन। सो केस नंबर 1, a wire is fixed with a wall. A wire is fixed with a wall and a force F is applied. F के ही टर्म में आपको आंसर करना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, यंग्स मॉडुलस इज Y. So how much is the elongation? So see, उस elongation के लिए ना सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वायर के अंदर हर पॉइंट पे फोर्स F ही है या अलग अलग है फोर्स। तो ये आप मुझे बताने वाले हो। आई एम टेकिंग पॉइंट P, Q, R, S, इन सारे पॉइंट्स पे फोर्स F है या कम है, अलग है। इक्विलिब्रियम का केस है ना ये, आपने फोर्स लगा के खींच रखा है और अभी पुल करके रखे हो, इस समय मैं पूछ रहा हूं। तो इसका सिंपल आंसर मेरे पास है कि क्या ये वायर मूव कर रहा है, ओवरऑल एक्सेलरेट हो रहा है क्या? आंसर इज नो, जैसे है इतना ही पे है। तो फिर वॉल कितना फोर्स लगा रखा है रॉड के ऊपर? ऑन द डायरेक्शन लेफ्ट, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स वॉल लगा के रखा है? सो इट्स ऑटोमेटिकली एफ एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आप एफ से कम बताओगे तो फिर इसमें एक्सेलरेशन देना पड़ेगा और वो केस है ही नहीं। ठीक है, सो एफ दूसरे इंड पे है, तो एटलीस्ट यू आर श्योर दैट द टू इंड्स हैव फोर्स एफ। और इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों तरफ एक्चुअली थ्रू आउट इसके अंदर फोर्स एफ ही रहेगा। कैसे? तो इसे मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक कर लूँ ऐसे सोचने के लिए। और मैंने बोला यहाँ फोर्स एफ है, यहाँ फोर्स एफ है, तो यहाँ पे टेंशन T1 कितना है, T2 कितना है एफ के टर्म में। तो आप पहले तो कंक्लूड करोगे कि ओवरऑल ये चल नहीं रहा है, इसलिए हर सेक्शन पे दोनों तरफ का फोर्स बराबर हो जाएगा। सो डोंट यू थिंक इन ब्लॉक 1 T1 इज इक्वल टू एफ,
And don't you think in block 3 T2 is equals to F? एक्सलरेट नहीं कर रहा तो दोनों तरफ का फोर्स बराबर, एंड देयरफॉर T1 equals to T2 equals to F, and therefore I said the force inside at each and every point will be same, and that is nothing but equals to F. क्या ये समझ में आया कैसे हम पकड़ेंगे इस बात को कि अंदर में फोर्स बराबर है थ्रू आउट या नहीं? और अगर नहीं समझ में आया तो इसका एक सिंपल तरीका ये सोच लेना कि दोनों तरफ से फोर्स अगर बराबर है तो अंदर भी फोर्स बराबर होगा, बिना सोचे हुए ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है? बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपको डीप थिंकिंग में जाना है, आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है? इफ द फोर्स ऑन द बोथ एंड ऑफ द रॉड इज F and F, in that case the force throughout will be also F in general. ओके तो मैं क्या बोलूं, रॉड पे 2F लग रहा है या F लग रहा है, ये भी जानना है अब मुझे। रॉड पे 2F लग रहा है या F लग रहा है, दोनों इंड पे FF दिख रहा है मुझे, क्या बोलूं? या 0 लग रहा है, बताओ। रॉड पे F लग रहा है, 2F लग रहा है या 0 फोर्स लग रहा है? 0. सो यू मीन टू से दैट इलोंगेशन नहीं होना चाहिए? If force is 0, elongation नहीं होना चाहिए, yes, but it is a fact, net force is 0, but हमारा देखने का तरीका यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा और जो हो रहा है वो रहेगा। सी हमें किसी एक बॉडी पे अगर इलोंगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट बॉडी बनाना पड़ेगा और एक ऑब्जर्वर बॉडी बनाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है? तो जैसे मान लो सेक्शन बिटवीन P Q एंड R लेते हैं, ये वाला सेक्शन लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा होगा F, और इस F की वजह से ये PQ जो QR जो सेक्शन है ना वो इलोंगेट करेगा, ऐसा समझना है, ठीक है? तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग फोर्स क्या ले, जो सेक्शन आपने बताया QR, इधर भी फोर्स F लग रहा है, इधर भी फोर्स F लग रहा है, तो हम क्या लें, 2F लें या फिर F लें? इलोंगेशन हो रहा है, दैट्स एग्रीड, 2F लें या F लें, बोलो? तो आपको F लेना है, F. यस, 2F नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी एक तरफ से ही सोचोगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इधर से फोर्स F लग रहा है, ठीक है? अगर ये F नहीं होता, सपोज करो ये F दूसरे साइड का F0 हो जाता, तो क्या ये सेक्शन रेस्ट में रहता? एक तरफ से फोर्स F लग रहा है और दूसरे तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्या ये सेक्शन रेस्ट में रहता? नहीं रहता, और सेक्शन रेस्ट में नहीं रहता तो एलोंगेशन यहाँ पे नहीं होता, हालांकि वो भी एक अलग केस है, उस पर भी बात करेंगे। सो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था ये समझने का कि थ्रू आउट फोर्स बराबर है कि नहीं है, तो यस, थ्रू आउट फोर्स बराबर है। Force S is same at all points inside, और इस केस में सीधा सीधा तुम्हें फॉर्मूला लगाना है F by A, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, और यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा FL अपॉन AY, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, केस 2, elongation under its weight,
एक वायर है जिसका वेट W दे रखा है, एक वायर है जिसका वेट W दे रखा है, ठीक है। तो अपने भार के वजह से ही ये इलोंगेट कर जाएगा। तो मुझे ये पहले समझना है। आई विल टेक द पॉइंट A, B and C. Can you tell me at which point tension is largest? Tension at A, tension at B and tension at C. Yes, I want an immediate reply. So everyone should agree with this, that the tension at C is largest, which is smaller. Tension at B will be smaller and tension at A is 0 in fact. How do we check this tension? तो we check the weight under that point. जैसे B के नीचे कितना वेट है, तो ये वाला पार्ट है, तो इसके वजह से B पॉइंट पे टेंशन आएगा। C के नीचे कितना वेट है, तो C के नीचे ये वेट है, इसके वजह से टेंशन आएगा। तो लार्जर द वेट अंडर, लार्जर इज द टेंशन एट दैट पॉइंट। तो क्या आप मानते हो अब इस टेंशन की वजह से इलोंगेशन हो रहा है हर एक सेक्शन में। इस पूरे रॉड को आप छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। तो किस सेक्शन में ज़्यादा इलोंगेशन तुम्हें दिखेगा, सी के आसपास में, बी के आसपास में, या ए के आजू बाजू में? इन विच सेक्शन विल यू फाइंड द मोर इलोंगेशन, ऑन द टॉप हाफ और ऑन द बॉटम हाफ? नेचुरली जिधर फोर्स ज्यादा है उधर ज्यादा इलोंगेशन होगा, जिधर फोर्स ज्यादा है उधर ज्यादा elongation होगा, and therefore yes, therefore you will find that there is a non-uniform elongation first thing, and you are saying in the top part, in the upper part, the elongation will be more comparing to the lower part of the wire. Yes, it is right. Now because the force is varying in this, it is different from the top, the case 1, case A. In case A, the force was constant throughout the wire, but in this case force is not constant throughout the wire, okay, and therefore we need to go for the integration. इस केस में हमें इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है पहले वो याद करो, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करना। तो इलोंगेशन डेल्टा एक्स जो आता है इसमें, वो आता है फोर्स, तो फोर्स तो W है यहाँ पे, L अपॉन 2AY। ये बात ध्यान रखोगे कि इस तरह के केसेस में आप देखेंगे कि इलोंगेशन जो आएगा वो उसमें नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ 2 नहीं था ऊपर वाले इक्वेशन में, यूनिफॉर्म होने की वजह से नीचे 2 है। कैन यू टेल मी व्हाई द 2 वुड बी कमिंग? 2 डिनोमिनेटर में क्यों आ रहा होगा? तो x का इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। ट्राई टू फोरसी दीज थिंग्स, ओके। x का इलोंगेशन हो रहा होगा, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 करके आएगा, और इसलिए 2 आया होगा, ठीक है। लेट्स डू इट नाउ। हम लोग b पे बात करते हैं, जो कि x हाइट ऊपर है। लेट्स से दिस इज b पॉइंट x above and the thickness of this part is dx। ये जो पीछे कर रहा था और फंस गए थे वो वाला कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं। तो ये वाला एलिमेंट को यहां बाहर लेके आओगे, ये है बी पार्ट, जिसका थिकनेस है dx। यहां पे टेंशन है T, ऊपर भी टेंशन T ही लेंगे, और है कितना टेंशन वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ B। तो देखो, तो टेंशन इक्वल्स टू वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, इंटू x हो जाएगा। ये सब पहले सिखा रखा है, मैं बात वापस एक ही चीज को अब रिपीट नहीं करने वाला। फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ विल गिव यू दैट मच अमाउंट ऑफ टेंशन, ओके। तो जो T है ना वो W x अपॉन L है।
ना इसके वजह से, इस टेंशन के वजह से इसमें एक छोटा सा इलोंगेशन होगा विच इज डेल्टा एक्स, जो मैं पीछे समझा रहा था कि डेल्टा एक्स यहाँ पे इलोंगेशन है और डी एक्स यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। सो इफ आई गो बाय स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इन दैट केस यू हैव टू राइट T अपॉन A बराबर y इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स, और T के जगह पे तुम्हें लिखना है WX अपॉन A इंटू L y इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स. Do the cross multiplication. Equals to डेल्टा एक्स. मैं फिर से पीछे पूछा था तुम लोगों से कि dx प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो वो आएगा L, एंड डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो टोटल इलोंगेशन dx आएगा, डेल्टा एक्स आएगा, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड. यहाँ x छूट गया ना, ये x है एक. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट थ्रू आउट. सो इलोंगेशन विल गो फ्रॉम 0 टू डेल्टा एक्स, सम अप करते जा रहे हैं, और ये जाएगा 0 से L तक, x का वेरिएशन. सो इट इज ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2a Ly इक्वल्स टू डेल्टा एक्स. लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके L तक, तो आ जाएगा WL अपॉन 2ay. एक L कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, इसलिए अभी W का मतलब ही फोर्स है, तो FL अपॉन 2ay ऐसा. तो आ गया 2 डिनोमिनेटर में. क्यों आया 2 डिनोमिनेटर में? बिकॉज ऑफ दिस x, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड दिस. तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहले, अब इंटीग्रेशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है, बट आप पहले से चीज़ों को पढ़ चुके हो तो समझ के भी रखो कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है. तो अगर फोर्स में वेरिएशन रहेगा तो नीचे 2 आता है, फोर्स में वेरिएशन नहीं रहेगा तो नीचे 2 नहीं आएगा. फॉर द टाइम बिंग इतना, ठीक है. अब नेक्स्ट सेशन में बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे. अभी काफ़ी केसेस और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर. राइट गाइस, चलो आई एम क्लोजिंग द सेशन. You have next lecture from 11:30 today.